Right, students? So what we have done in the previous class? हाँ जी बच्चों, क्या किया था हमने? वर्कशीट में कहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे बच्चों? क्वेश्चन 9 तक हो गए थे, राइट? सो हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM? Where to use HCF, where to use LCM? Is it clear to all of you? चलिए फिर हम चेक करते हैं जरा आज कितना आपको क्लैरिटी हुई है. Now comes to the question number 18. Can you see the question number 18? It is a case study. Just have a look at this question, students. A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and mathematics. बच्चे देखिए क्या है, एक सेमिनार हुआ है, एक सेमिनार हुआ है बच्चे, जिसमें टीचर्स आए हैं, राइट? कौन कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर आए हैं जी? हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. हाउ मेनी ऑफ हिंदी? हाउ मेनी हिंदी टीचर्स? 60. How many English? 84. How many mathematics? 108. Is this clear? Now comes to the question, students. In each room, the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Then calculate maximum number of participants that can be accommodated in each room are. Now, by reading this question, please tell me what we have to do in this. Please raise your hand. Who will tell me? Please, बच्चों, raise your hand and tell me what to do in this. पहले इसको केयरफुली रीड करो, एक एक वर्ड को डिकोड करो बच्चों. Then you will understand what we have to do. एक बच्चा खड़ा होके बोले, ऐसे आवाज नहीं समझ आती. Any one of you please come. Anyone? अब क्या हो गया? अब आप आ नहीं रहे हो. सारे जब इकट्ठे यूनिसन में बोल रहे हैं तो अब तो आ रहे हैं, अदरवाइज सिंगल को मैंने बोला. बेटा ये जो गर्ल स्टूडेंट है सेकंड बेंच पे ना, जो मुझे नजर आ रही है, सेकंड बेंच ऑन माय राइट साइड, प्लीज स्टैंड अप. जो दूसरी असाइनमेंट में देख रही है, आपके पीछे वाले, आपके पीछे वाले. तो पता है मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ. बेटा आ जाओ प्लीज, प्लीज स्टैंड अप. यस बच्चे, अभी तो आप बड़ी आवाज से बोल रहे थे, आप बताओ ना क्या है. व्हाई यू आर हेजिटेटिंग? हाँ जी. HCF. HCF? HCF. हाँ HCF. Why HCF बेटा? Because there is maximum numbers. Maximum number. Very good beta. You have picked the right word. Sis, please sit down. As they have asked, what will be the maximum number of teachers or participants in a room? Means हर रूम में आप कितने teachers you can put so that all of them are from the same subject. So what will be the HCF of these three? Maximum word आया बेटा. HCF का synonym है ये, right? So you have to find highest common factor. To find out the highest common factor of these three numbers. What will be the highest common factor of these three numbers? Yes, students. अरे इतनी देर लग रही है ऐसे फाइंड आउट करने में. Solve fast better. 12 आ गए. वेरी गुड बच्चों. HCF comes out to be 12. Now comes to the question number 2.
What is the minimum number of rooms required during the event? How many minimum number of rooms will be there? How to find out? कौन बताएगा बेटा? How to find out? Whether to find out SCF or LCM? क्या करना है इसमें बेटा? Please read the question carefully and then please explain me. Can we stand up and give answer? हाँ जी बेटा बताइए. बताइए बच्चे. गाना बता दो ने. सर 12 अपना डिवाइड कर. हाँ जी. 12 अपना डिवाइड कर. 12 नाल किन्नू डिवाइड करेंगे बेटा? आवाज नहीं क्लियर है बच्चे आपकी. सर जेडे नंबर्स आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 अपना डिवाइड करना. ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ? हिंदी दे इंग्लिश दे ਤੇ ਮੈਥ. ਆ ਵਾਲੇ 3 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ. किना आएगा आंसर बेटा डिवाइड कर करके दसो. फर्स्ट ਦਾ आएगा 5. वेरी गुड. सेकंड दा यार इतनी देर थोड़ी लगती है डिवाइड करने च. हाँ जी. 12 7 का 84 होता है बेटा. प्लस 12 प्लीज सिट डाउन. ठीक है तो तीनों को ऐड कर दिया. ठीक है तो कितना आ गया ये? 21 रूम्स आ गए. तो सारे टीचर जो हैं दे कैन बी पुट इन द 21 रूम्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108. प्लीज फाइंड आउट द एलसीएम बच्चों. यस. हाँ जी स्टूडेंट्स. LCM of the 3 numbers 60 84 and 108. Speak loudly. 3780. 3780 सबका आ गया जी. Yes, sir. What is the next question? The product of SCF and LCM of 60 84 and 108 is. हाँ जी प्रोडक्ट कितना आ रहा है दोनों का? LCM था हमारे पास 3780. SCF was 12. तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3780 ये फाइंड आउट कर लेंगे जी. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बेटा. क्या आएगी 108 की? या 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. वेरी गुड बच्चों. तो इज दिस क्लियर? चलो तो मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझ आ गया मतलब. ठीक है अभी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर. अब देखिए जरा असर्शन रीजंस क्वेश्चन पे आ जाइए. 10th and 11th question you can do yourself very easy. Yes. Look at the question number 12. The SCF of two number is 16 and their product is 3072. Then their LCM is. Just check out and tell me whether this is true or false. Question number 12. Tell assertion is true or false.
इतनी देर क्यों लग रही है, गप्पे क्यों मार रहे हो इतनी बेटा? सिंपल फार्मूला है, देखिए रीजन के अंदर फार्मूला लिखा हुआ भी है आप लोगों को, तो क्या मुश्किल आ रही है इसमें बेटा? प्रोडक्ट गिवन है कितना, 16, SCF is 16, product is 3072, SCF is 16, you have to find LCM, so just you have to divide 3072 by 16, इसको डिवाइड किया 16 1 9 2, तो 192, तो गिवन है 162, hence it will be false, right? और reason is true, reason is true बच्चों, hence the option will be D option. बोल रहे क्यों नहीं? Now comes to the question number 13. The SCF of two number is 5 and their product is this. ये same question हो गया बेटा. Come to the question number 14. For any two, देखिए बेटा एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है. For two odd prime numbers, two odd prime, two odd prime number कौन कौन से हैं बेटा? For any two odd prime number x and y, means x and y, they are odd also and they are prime also, right? They are odd as well as prime. ठीक है, LCM of 2x, 4y, LCM of 2x, 4y is 4xy. Now please check whether this is true or false. Please check whether it is true or false. बेटा देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, वेरिएबल्स है यहाँ पे. तो अगर आप 2x की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी दिस, 4y की करेंगे तो क्या आ जाएगा, राइट? नाउ व्हाट इज द मेथड टू टेक द एलसीएम? जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, तो यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर इज 2, x की पावर 1, y is 1, so it comes out to be 4xy. yes or no बच्चों? तो इट इज ट्रू बेटा. सेम चीज आगे देखो जरा यहाँ पे, LCM is 4xy, so it is true. Now comes to the second part. What is the reason? LCM of xy is a multiple of SCF. हाँ जी बच्चे, is it true or false? Is this true or false? True है बेटा. HCF is always a factor of LCM, right? So does the option will be A or B? Option will be A or B. राइट ऑप्शन क्या होगी बेटा? A is true, R is true, दोनों तो ट्रू हैं. प्लीज टेल मी वेदर इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट. क्या हो गया बेटा, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो बच्चे? एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है? ये पहले स्टेप में ओनली एलसीएम है, कोई रिलेशन तो नहीं है ना वहां पे एचसीएफ और एलसीएम का. बट दूसरा स्टेप जो एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन को बता रहा है. So hence it is not the correct explanation. So option will be B option. देखिए बेटा असर्शन रीजन में प्रॉब्लम क्या होती है, इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोग सब कुछ ठीक करोगे सॉल्यूशन, लेकिन जब मैटर क्या करता है कि आप क्या टिक करके आ रहे हो वहां पे, अगर वो टिक करने में आपने गड़बड़ कर दी, एवरीथिंग इज गोन. तो आंसर विल बी हियर बी. Now comes to the question number 15. For any two prime numbers P and Q, their SCF is 1 and LCM is P plus Q. SCF is 1 and LCM is P plus Q. Is it true or false? हाँ जी, false. Why false? Can you tell me why?
यस, टेल मी वाई। बेटा एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट होगा ना। आपने देखिए दो प्राइम नंबर लिए पी और क्यू। पी के फैक्टर तो बन गए पी रेस टू पावर 1 और क्यू के फैक्टर बन गए क्यू रेस टू पावर 1। तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट होता है या एडिशन होता है? तो फिर बेटा तो P इंटू क्यू आंसर आ जाएगा ना एलसीएम का। तो P प्लस क्यू तो नहीं होगा ना। नाउ कम्स टू द रीजन पार्ट। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर एचसीएफ वो सेम है बेटा, वो ट्रू है। तो ऑप्शन आ जाएगी डी ऑप्शन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फॉर टू प्राइम नंबर x and y where x is less than y। क्वेश्चन नंबर 16, x is less than y and both are prime numbers. HCF of xy is x and LCM is y. And LCM is y. Is it true or false? हाँ जी बच्चों, ट्रू और फॉल्स? Why? What will be their HCF? 1. What will be their LCM? Very good बच्चों, very good. So it is false. Now what is the reason? HCF is less than equal to LCM. Is it true or false? Is it true or false? हाँ जी, ट्रू है बेटा, ये ट्रू है, राइट? ठीक है। तो अच्छा 17 वाला तो सेम क्वेश्चन आ गया जो 13 था, 14। So we are done with the assignment. Now we will move to the proving part, right? Which is very, very important. Proving of the irrational numbers, right? The question comes, prove that root 2 is irrational. Okay. So students, when you have to do this question, there is a theorem which says that, हाँ जी बताएंगे आप लोग? Will you tell me which theorem we use here? If p square is divisible by a, then p is also divisible by a. If p square is divisible by a, then p is also divisible by a. Have you understood this? Yes. Have you understood? बेटा व्हाट डू यू मीन बाय पी स्क्वायर? पी स्क्वायर एक नंबर है, पी कोई नंबर है उसका स्क्वायर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है पी इज 12, इसका स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 144। नाउ लेट्स से ए जो है ए इज 3, तो 144 इज डिविजिबल बाय 3, राइट बच्चों? तो 12 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। इज इट क्लियर? कंडीशन इज, व्हाट इज द कंडीशन? ए इज ए प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? ए इज ए प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर प्राइम नहीं है फिर देर में भी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल 144 जो है वो 9 से डिविजिबल है। दिस इज क्लियर? बट 12 नहीं है ना 9 से डिविजिबल। वाई? बिकॉज 9 इज नॉट ए प्राइम, सो ए शुड बी प्राइम। इज इट ओके? इसका मैं प्रूफ आपको नहीं करा रहा हूं बिकॉज प्रूफ इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ, राइट स्टूडेंट्स? दिस इज क्लियर? सो नाउ आई विल मूव टू द क्वेश्चंस जो जनरली आते हैं पेपर में। प्रूव दैट root 2 is irrational.
प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। तो हमें ये जो प्रूव करना है बेटा, वी डू दिस प्रूविंग बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्ट्स? कोई बताएगा प्लीज? एनीवन स्टैंड अप एंड टेल मी। आप लोगों ने कर लिया ये टॉपिक बेटा? इफ यस प्लीज रेज योर हैंड। आप लोगों ने किया ये टॉपिक या नहीं किया? Yes, sir. कर लिया है। तो वहां पे आपने कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड यूज किया या नहीं किया? आप लोगों ने किया है यूज बेटा वर्ड? Yes, sir. तो मीनिंग क्या होता है इसका मुझे बता दो जरा एक बार। आपने यूज किया है ना बच्चे, पता होना चाहिए ना मीनिंग। कौन बताएगा प्लीज स्टैंड अप। assumption, हाँ जी supposition और बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब, अजम्पशन तो अलग चीज हो गई ना। अजम्पशन का मतलब तो होता है व्हाट वी आर एज्यूमिंग। एज्यूमिंग मतलब जैसे हम लेट करते हैं ना, लेट, ठीक है? तो एजम्पशन तो लेट हो गया, राइट? Anybody other? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है बेटा वट एवर आई एम सेइंग, जो मैं अभी बोल रहा हूं, अगर मैं 5-10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद बोलता हूँ नहीं नहीं वो चीज गलत है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। मीन्स वट एवर यू आर सेइंग आफ्टर सम टाइम यू आर डिनाइंग दैट। इज दिस क्लियर? यस। Yes. यहाँ पे हम क्या यूज, कैसे यूज करते हैं? क्वेश्चन के और प्रूविंग के इनिशियल में हम बोलते हैं कि दिस इज, वी एज्यूम समथिंग एंड लेटर ऑन वट एवर वी एज्यूम वी प्रूव दैट रॉन्ग। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू डू दिस, देन आई विल फर्दर एक्सप्लेन यू। कोई बता सकता है बेटा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? यस, आप लोगों ने कर लिया होगा ना ये अभी तक तो। यू मस्ट नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए मैं Yes, sir. बताता हूँ। अगर आप लोग नहीं बताते तो आई विल एक्सप्लेन। कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू डू? क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन के बेटा? प्लीज एनीवन स्टैंड अप एंड टेल मी। She stand up. Be confident. फील कंफर्टेबल बेटा, फील कॉन्फिडेंट। दो स्टेप बता के बैठ जाओ। हाँ जी, Root 2 is प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? let root 2 is a rational number. लेट रूट टू इज रैशनल, देन Root 2 is equal to a upon b. रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। वाई Because वी we राइट have दिस? First we have let that root 2 is a rational number हाँ जी, देन and number can be written in the form of p by q or a upon b. very good, that what I want to know. As we know that all rational numbers can be expressed as p upon q form, therefore root 2 can be expressed as p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Is it clear? And p by q are prime numbers. p and P and p by Q. q. P and q are co-prime numbers. Acha, we are assuming p and q are co-prime. Okay, very good. And p and q are co-prime. What do you mean by co-prime, beta? Exactly. What is the meaning of co-prime? Whose common factor is 1 only. Very good. Why we are taking here co-prime? अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देते कि ये इंटीजर्स है, ये को-प्राइम नहीं बोलते इसको। Why? देखिए, एवरीथिंग है सम रीजन बेटा, वी शुड नो द रीजन। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यू हैव 4 सेक्शंस, राइट? Yes, sir. Why you are in this sunflower, not in the lotus or daffodil or rose? रीजन है ना उसका कुछ? Do you know the reason or not? Yes. What is the reason बेटा?
चलो एनीवे यू नो इट, दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सिमिलरली बेटा कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। It is a condition of rational numbers. बेटा कंडीशन तो ये वाली है ना, ये तो नहीं है ना, दिस इज नॉट द कंडीशन, दिस इज नॉट द कंडीशन ना। हम बेटा वन को रैशनल बोलते हैं, वी कैन राइट 2/2 3/3, तो 2 और 2 तो प्राइम को प्राइम नहीं है ना, Yes. नहीं है ना बेटा को प्राइम। Yes. तो व्हाई वी हैव रिटन दिस थिंग स्पेसिफिकली? Because we will contradict this fact at the end to prove that root 2 is irrational. Yes, because later on we'll show that P as well as Q both are divisible by 2, which means they are not co-prime. So we have assumed this thing here, कि they are co-prime, because we are later on going to contradict that. Very good, beta. Please sit down. Right? Now we have taken root 2 is equal to P upon Q. Now what you will do? Squaring both sides. Squaring both sides. So what it becomes? P by P square by Q square, which can be written as, now here P square is equal to 2Q square. Now when P square can be written as 2Q square, so what is the meaning of this? P square is divisible by 2. Therefore, P square is divisible by 2. देखिए बेटा, आप किसी नंबर का, ये फैक्टर्स हो गए ना, देखो इसके P स्क्वायर को मैंने लिख दिया बच्चे 2 into Q into Q, right? So means 2 is a factor of P square ना, if 2 is a factor of P square then P square is divisible by 2, और यहाँ पे देखेंगे and hence P is divisible by 2, right? This is clear. Next step में क्या लिखेंगे? As P is divisible by 2, we can write P is equal to 2R, right? बच्चे अगर P का एक फैक्टर 2 है तो we can write P is equal to 2R, where R is, R क्या है? R is, एक बच्चा खड़ा होके बताया जरा क्या है? Any integer, right? So now इस इक्वेशन को आप 1 लिख लो. Now again squaring both sides. Again squaring both sides, what it become? P square is equal to 4R square. Now P square is equal to 2Q square. Here P square is equal to 4R square. So from 1 and 2, you can write 2Q square equal to 4R square. Right बच्चों, दोनों में P square की वैल्यू इक्वेट कर दी. So what we got? Q square is equal to 4/2 R square, that is Q square comes out to be equal to 2R square. Is it clear? Is this clear? तो यहाँ पे क्या होगा? As Q square is divisible by 2, hence Q is also divisible by 2. Is this clear? As Q square is divisible by 2, hence Q is also divisible by 2. So now what we got? Both, यहाँ पे लिखेंगे, as P and Q both are divisible by 2, which contradict
our assumption contradict our assumption, ठीक है, hence root 2 is irrational, right बच्चों? हमारी assumption क्या थी? Assumption was P and Q are co-prime. Is this clear? हमारी assumption क्या थी? P and Q are co-prime. Is this clear? Is it clear or not जी? Yes. तो ये क्लियर हुआ? वैसे तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग कर चुके होंगे सारा ये वाला पार्ट, राइट? बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज डेज जो क्वेश्चन आ रहा है ना एग्जाम में बेटा, वो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहा है कि रूट 2 इज रैशनल, इरेशनल और रूट 3 इज इरेशनल। जो स्टैंडर्ड वाला था इस बार, उसमें तो सिंपल क्वेश्चन आया है। जो बेसिक वाला था दैट हैज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू लेटर ऑन। एक जो जनरली क्वेश्चन होते हैं उस तरह के होते हैं, सपोज प्रूव दैट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। अगर इसको इरेशनल प्रूव करना है तो कैसे करते हैं जी? इसको अगर आपने प्रूव करना है तो कैसे करते हैं? देखिए, अगर क्वेश्चन ये आ रहा है 4 मार्कर 5 मार्कर में, 4 या 3 में, तो आपको देखो क्या करना है। इसको क्या करेंगे, लेट 2 प्लस रूट 5 इज रैशनल। इसको हमने रैशनल ले लिया बेटा, तो क्या किया इसको, 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू आ गया बेटा यहाँ पे। इज इज क्लियर? रूट 5 को इधर ही रखा तो ये पी बाई क्यू माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई किया, ये बन गया पी माइनस 2q, राइट? सो इफ द क्वेश्चन अगर आपके पास ये 2 मार्कर में आ रहा है, फिर तो आप करो कि दिस पार्ट इज एज p minus 2q upon q is rational, but we know that root 5 is irrational, right? Better no talking please. We know that root 5 is irrational, therefore 2 plus root 5 is irrational, ठीक है? अगर आपके पास ये क्वेश्चन सपोज 4 मार्कर में आ गया, तो आप इसको प्रूव करोगे रूट 5 को भी, जो हमने प्रोसेस लगाया ना पहले, तो यू विल प्रूव इट thoroughly that this is also no talking please. तो रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है? वो आप प्रूव करके फिर आप इसको सॉल्व करोगे। इज इट क्लियर और नॉट जी? एनी डाउट बच्चों? क्लियर हो गया आपको सारा ये? चलिए नेक्स्ट क्लास में ना हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे जो स्टेटमेंट सम्स है एचसीएफ और एलसीएम पे, राइट? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।